This is Sukriti. Welcome to News World. Today's major news. Actor Saif Ali Khan seemed to have ended on the wrong side post his recent interview in which he opened up about his upcoming film Adipurush and on essaying the character of Ravan in the project. While his humane Ravan statement stirred a controversy on social media, the 50-year-old has withdrawn his comment and apologized to all. தெளிவுறவே அறிந்திடுதல் தெளிவுதர மொழிந்திடுதல் சிந்திப்பார்க்கே கழிவளர உள்ளத்தில் ஆனந்த கனவு பல காட்டல் கண்ணீர் துளிவர உள் உருக்குதல் இங்கிவையெல்லாம் நீயருளும் தொழில்களன்றோ ஒளிவளரும் தமிழ்வாணி அடியனேற்கு இவை அனைத்தும் உதவுவாயே. வணக்கம், குட் ஈவினிங். The Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Sri Edappadi K. Palaniswamy, the Honorable Minister of Tamil Development, Archaeology, Art and Culture, Tamil Nadu, Sri K. Pandiyarajan, the renowned Bharati scholar, the recipient of Bharati Virudu today, Sri C.V. Viswanathan, Sri B.S. Raghavan, Sri L. Ganesan, Sri R. Nataraj, Madam Shivashankari and the other dignitaries in the panel. I, on behalf of Vaanavil Cultural Center, wholeheartedly, with a sense of awe and pride, welcome the Honorable Prime Minister, our beloved Sri Narendra Modi ji, to this International Bharati Festival. His presence in this festival is not merely his presence, not the presence of just an individual, but the presence of more than 130 crore of Indians living in India and outside India all over the world. You, the Honorable Prime Minister, sir, represents the entire nation in paying tributes to our Mahakavi Subramanya Bharati. We are very grateful to you, the Honorable Prime Minister, for accepting our invitation and sparing your valuable time to be here with us to celebrate this 138th birth anniversary of Mahakavi. All those who speak Tamil all over the world are filled with joy and pride today that as it has never been in the recent history that Prime Minister of this nation has participated in a festival to commemorate Mahakavi Subramanya Bharati or any other fight for that matter. I salute you, the Honorable Prime Minister. This festival is unique in more than one way. This is the first time that with the worldwide participation, an international festival of this magnitude is celebrated for Bharati. I am proud to say that in this 10-day festival, more than 200 artists, singers, dancers, children, poets and scholars are presenting excellent emotional program based on Bharati's ideals of patriotism and national integration. Many events are presented by those who are abroad in places like Chicago, California, London, Oman, Muscat, Paris, Singapore and Malaysia, and also by those in Mumbai, Kerala, Pondicherry, Trichy, Coimbatore, Pudukkottai and all other places. Poets from 12 different languages, Dogri, Gujarati, Assamese, Manipuri, Odia, Hindi, Marathi, Bengali, Kannada, Telugu, Punjabi are reciting their scintillating poems in their respective languages. Praise our Rashtra Kavi Bharati on 20th, the final day of the festival. We can see the central thread of patriotism that runs through all this program. We are proud of our language Tamil, the most ancient of all languages, yet still sweet and young, being the spoken language of nearly 100 million people all over the world. We are equally proud that we are Indians and worship this most ancient land, Bharat, as our mother goddess, Parashakti. Bharati instills that spirit in all of us. It seems yet that it is somewhat eclipsed in the recent years. It is the real need of ours to spread the message of Bharati, especially to youth and children. I once again welcome the Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Edappadi K. Palaniswamy, and the Honorable Minister Sri K. Pandiyarajan. Now I request the Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Sri Edappadi K. Palaniswamy, to deliver his speech. அனைவருக்கும் வணக்கம். உலகளாவிய பாரதி திருவிழாவில் பங்கேற்று சிறப்பித்துக் கொண்டிருக்கும் மாண்பு பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடிஜி அவர்களே, மாண்பு அமைச்சர் திரு மாபா பாண்டியராஜன் அவர்களே, வானவில் பண்பாட்டு மைய நிர்வாகிகளே, பாரதி விருது பெற இருக்கும் திரு சி.வி. விஸ்வநாதன் அவர்களே, வானவில் பண்பாட்டு மையம் நடத்தும் இந்த உலகளாவிய பாரதி திருவிழாவில் பங்கேற்பதில் தமிழனாய் மனமகிழ்கின்றேன். தனது உரைகளில் மகாகவி பாரதியாரையும் திருவள்ளுவரையும் அதிகமாக மேற்கோள் காட்டி பேசும் மாண்பு பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு தமிழ்நாட்டின் சார்பாக இத்தருணத்தில்
எனது மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பாரதி விருதினை பெறும் திரு சீனி விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கு முதற்கண் எனது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். கவிஞர் மட்டுமல்லாது சமூக ஆர்வலராக, பத்திரிகையாளராக, பாடல் ஆசிரியராக, சுதந்திர போராட்ட வீரராக பன்முகத்தன்மை கொண்டவர் பாரதியார் அவர்கள். தமிழ் இலக்கிய உலகம் மட்டுமல்லாது உலக இலக்கிய அரங்கிலும் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பிடித்தவர் நமது பாரதியார். அவருடைய படைப்புகளில் நாட்டுப்பற்று, தெய்வீகம், அன்பு, அறிவு, காதல், பக்தி, புரட்சி, கருணை, இரக்கம், தயவு, தியானம், யோகம், இசை, கலைகள், வேள்வி, அரசியல், வேதாந்தம், இதழியல் உள்ளிட்ட பல்வேறு உன்னத மனித உணர்வுகள் மிளிர்ந்தன. தனது கல்வித்தலத்தால் மிக இள வயதிலேயே எட்டயபுரம் சமஸ்தானத்தில் அரசவை கவிஞராக திகழ்ந்த மகாகவி பாரதி சுதந்திர போராட்ட வரலாற்றில் தனது பாடல்கள் மூலம் சுதந்திர வேட்கையை பாமர மக்களிடம் பரப்பி சுதந்திர உணர்வினை துளிக்கச் செய்தார். தனது பாடல்களில் தேசிய ஒருமைப்பாட்டிற்கும், பெண் விடுதலைக்கும், சமூக சீர்திருத்தங்களுக்கும் மிகவும் முக்கியத்துவம் கொடுத்தார். பட்டங்கள் ஆள்வதும், சட்டங்கள் செய்வதும், பாரியில் பெண்கள் நடத்த வந்தோம் என்று பெண் விடுதலைக்காக பாடல்கள் இயற்றினார். பல்வேறு மொழிகளில் புலமை கொண்ட பாட்டுக்குரு தலைவன் பாரதி. கண்ணன் பாட்டு, குயில் பாட்டு, பாஞ்சாலி சபதம், எழுச்சியூட்டும் தேசிய கீதங்கள் இயற்றியபடியே பத்திரிகையும் நடத்தினார். மிக எளிய நடையில் பாமர மக்களும் புரியும் வகையில் கவிதைகள், கட்டுரைகளை எழுதி மக்களிடையே அவர் ஏற்படுத்திய விடுதலை விழிப்புணர்வு கண்டு ஆங்கிலேயர்கள் அச்சமடைந்து பாரதியின் படைப்புகளுக்கு தடை விதித்ததோடு மட்டுமல்லாமல் அவருக்கு சிறை தண்டனையும் விதித்தனர். சுதந்திர இந்தியா எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று மிக பெரும் கனவினை சுமந்து கவிதைகளை புனைந்த தீர்க்கதரிசி கவிஞர் பாரதி. சுதந்திர இந்தியாவின் தொழில் வளர்ச்சி, அறிவியல் வளர்ச்சி, கல்வி வளர்ச்சி பற்றி ஆலைகள் வைப்போம், கல்வி சாலைகள் வைப்போம், வானை அளப்போம், கடல் மீனை அளப்போம், சந்திர மண்டலத்து ஏழ்கண்டு தெளிவோம் என்று பாடினார். கங்கை நதிபுரத்து கோதுமை பண்டம், காவிரி வெற்றிலைக்கு மாறுகொள்வோம் என்று பாடி தேச ஒற்றுமையை கூறியதோடு மட்டுமில்லாமல் வேளாண் பெருமக்களுக்கென பெரும் சந்தையை கனவு கண்டார். தமிழராகவும் தமிழ்நாட்டில் பிறந்தவராகவும் மிகவும் பெருமை கொண்ட பாரதியார் செந்தமிழ் நாடு என்னும் கவிதையில் கல்வி சிறந்த தமிழ்நாடு, புகழ் கம்மன் பிறந்த தமிழ்நாடு என்று பாடி மகிழ்ந்தார். தமிழ் மீது கொண்ட பற்றினால் தமக்கு பல்வேறு மொழிகளில் இருந்த புலமையினால் கண்டு தெளிந்து தமிழ் மொழியினை யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் காணோம் என்றும், தமிழ் புலவர்கள் பற்றி கூறும்போது யாமறிந்த புலவரிலே கம்மனை போல், வள்ளுவர் போல், இளங்கோவை போல் பூமிதனில் யாங்கனும் பிறந்ததில்லை என்று பாடி பரவசம் அடைந்தார். எட்டயபுரத்து பாரதியாரின் சிந்தனைகள் 8 திசையிலும் ஒலிக்க வேண்டும் என்று மாண்புமிகு இதயம் புரட்சித் தலைவி அம்மாவின் அரசு பாரதியாரின் பாடல்களை சீனம் மற்றும் அரபு மொழியில் மொழிபெயர்த்துள்ளது. மாண்புமிகு இதயம் எம்ஜிஆர் அவர்கள் பாரதியார் பெயரில் பல்கலைக்கழகம் ஒன்றை நிறுவினார். மேலும் மகாகவி பாரதியார் பெயரில் விருது வழங்கும் திட்டத்தை அவர் கொண்டு வந்தார். புரட்சித் தலைவி அம்மா அவர்கள் திருவல்லிக்கேணியில் தனியாரிடமிருந்த பாரதி வாழ்ந்த இல்லத்தை வாங்கி புதுப்பித்து நிறுவனமாக மாற்றினார். இன்றும் வலிமையான ஒன்றுபட்ட பாரதமாக இந்தியா விளங்குவதற்கு பாரதியாரின் பாடல்கள் நமக்கு துணை நிற்கின்றன. அவரது பிறந்த நாளில் பாரதியின் புகழை போற்றுவதிலும், அவரின் கொள்கைகளை கடைபிடிப்பதிலும், அவரை வணங்குவதிலும் நான் மற்றற்ற மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன். வாழ்க பாரதி, வெல்க தமிழ். நன்றி, வணக்கம். Now we move on to conferment of Bharati Virudu on the Bharati scholar Thiru Sini Viswanathan. Vanavil Panbaattu Mayam takes pride to confer Bharati Virudu 2020 to Srini Viswanathan in appreciation of his outstanding service to the study of the monumental works of our Rashtra Kavi, the national poet, Mahakavi Subramanian Bharati. He has compiled and published the complete works of Mahakavi in 12 volumes, arranged chronologically, and has written more than 40 books on Bharati research. At age 86, he is young in spirit and still relentlessly pursuing his passion for bringing out more research volumes on Bharati. We thank the Honorable Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for conferring this Bharati today virtually on Sri Srini Viswanathan. Now I request
As all of you are waiting and expecting the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji to deliver his presidential address. Chief Minister Sri Palaniswamy ji, Minister Sri Pandya Rajan, Sri K. Ravi, Founder Bonneville Cultural Center, distinguished dignitaries, friends, Vanakkam, Namaste. I begin by paying tributes to the great Bhartiyar on his Jayanti. On such a special day, I am happy to be taking part on his Jayanti in the International Bharti Festival. On such a special day, I am also pleased to present the Bharti Award on his Jayanti for this year. International Bharti the great scholar. Special day, I am also pleased to present the Bharti Award on his Jayanti. Dedication entire life the great scholar. Special day, I am also pleased to present the Bharti Award on his Jayanti. Dedication entire life the great scholar. Special day, I am also pleased to present at the age of 86 on his dedication entire life the great scholar. Special day, I am also pleased to present at the age of 86 on his dedication. Bhartiya cannot be linked to any single profession or dimension. He was a poet, writer, editor, journalist, social reformer, freedom fighter, humanist, and much more. One can only marvel at his works, his poems, his philosophy, and his life. He also had a close link with Varanasi, which I have the honor of representing in the parliament. I recently saw that his collected works have been published in 16 volumes. In short, life of 39 years, he wrote so much, did so much, and excelled in so much. His writings are a guiding light to us towards a glorious future. Friends, there is much that our youth today can learn from Subramaniam Bharati. Most importantly, to be courageous. Fear was unknown to Subramaniam Bharati. He said, Accha millai, accha millai. Accha menbadilleya. Iccha kuttu lorelam. Edirtu nindra podidum. It means, fear I have not. Fear I have not. Even if all the world oppose me. I see this spirit in young India today. I see this spirit when they are at the forefront of innovation and excellence. India's startup space is filled with fearless youth who are giving something new to humanity. Such a can-do spirit will bring wonder for our nation and our planet. Friends, Bhartiyar believed in a healthy mix between the ancient and the modern. He saw wisdom in saying, connected with our roots as well as looking towards the future. He considered Tamil language and motherland India as his two eyes. He sang songs of the greatness of ancient India, the greatness of Vedas,
and Upanishads, our culture, tradition, and our glorious past. But at the same time, he also warned us that simply living in the past glory is not enough. We need to develop a scientific temper, a spirit of inquiry, and much toward progress. Friends, Mahakavi Bharatiya's definition of progress had a central role for women. One of the most important visions was that of independent and empowered women. Mahakavi Bharatiya wrote that women should walk with their head held high while looking people in the eye. We are inspired by this vision and we are working to ensure women-led empowerment. It would make you happy that in every sphere of our government's working, there has been importance given to dignity of women. Today, over 15 crore women entrepreneurs are funded by schemes like Mudra Yojana. They are walking with their head held high, looking us in the eye and telling us how they are becoming self-reliant. Today, women are becoming part of our armed forces with permanent commissioning. They are walking with their head held high and looking us in the eye and filling us with confidence that the country is in safe hands. Today, the poorest of the poor women who used to face problems of lack of safe sanitation are benefited by over 10 crore safe and hygienic toilets. They do not have to face problems anymore. They can walk with their head held high and look everyone in the eye, as Mahakavi Bharatiya has imagined. This is the era of New India's Nari Shakti. They are breaking barriers and making an impact. This is New India's tribute to Subramaniam Bharati. Friends, Mahakavi Bharatiya understood that any society which is divided will not be able to succeed. At the same time, he wrote about the emptiness of political freedom, which does not address the social inequities and does not address social ills. He said, and I quote, "Ini oru vidisevam, adei enda nalum kapum, tani oru madidnukum, unmu ille yenil, jagati ne ali tiddubam." It means now we will make a rule and reference it ever. If ever one man faces starvation, the world has atoned on pain of destruction. His teachings are a strong reminder to us to remain united and committed to the empowerment of every single individual, especially the poor and marginalized. Friends, there is a lot our youth have to learn from Bharati. I wish that everyone in our country reads his works and is inspired by them. I congratulate Vanaville Cultural Center on their wonderful work in spreading the message of Bharatiya. I am confident that the festival will have productive deliberations which will help steer India into a new future. Thank you. Thank you very much.
Namaste. We are all overwhelmed by your excellent speech. नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं हमारे मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी का, मिनिस्टर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। हमारे साथ हैं मिस्टर आर.पी. गुप्ता, सेक्रेटरी जी, श्री रविशंकर प्रसाद, एडिशनल सेक्रेटरी, मैडम ऋचा शर्मा, ज्वाइंट सेक्रेटरी। जैसे आप सबको मालूम है, हिस्टोरिक पेरिस एग्रीमेंट ऑन क्लाइमेट चेंज, कल इसके 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। इसके बारे में हमने क्या क्या किया है, मंत्री जी इसके बारे में ब्रीफ करेंगे और साथ में एक डिटेल्ड प्रेजेंटेशन भी होगी। मैं मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि सर ब्रीफिंग। पेरिस एग्रीमेंट को 5 साल कल हो रहे हैं। कल यूएन की या यूनाइटेड किंगडम ने बैठक बुलाई है। भारत के प्रधानमंत्री भी उसमें ये वर्चुअल मीटिंग है, भाग लेंगे। आज मैं आपको 5 साल में क्या क्या किया और दुनिया कहाँ है, ये मैं बताना चाहता हूं। पहला तथ्य यह है, पहला तथ्य यह है कि क्लाइमेट चेंज, जलवायु परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ है। 100 साल जो ग्रीन हाउस गैसेस हवा में छोड़े गए हैं, उसके आधार पे आज की जलवायु परिवर्तन है क्लाइमेट चेंज। सो क्लाइमेट चेंज इज नॉट वन थिंग that has resulted because of recent actions. It has the historical actions. And who is historically responsible for? That is this chart. USA has 25% of historical emissions, 400 billion tons. Europe has 22% of historical emissions. China has 13% of historical emissions and India has only 3%. तो भारत केवल 3% हिस्टोरिकल, जिसके कारण आज क्लाइमेट चेंज हुआ है, उसमें भारत का योगदान केवल 3% है। तो इस समस्या को भारत जिम्मेवार नहीं है, लेकिन फिर भी एक जिम्मेदार देश के नाते हम इसका जो उपाय करना है उसमें शामिल हुए हैं। नेक्स्ट, हाँ, यह भी हमें समझना चाहिए कि आज की स्थिति क्या है, आज का पोल्यूशन क्या है, आज का पोल्यूशन नहीं, एमिशन की स्टेटस क्या है। तो आज भी यूनाइटेड स्टेट्स का 15.5% है, 15.52%. No, tons per capita. Tons per capita is 15 tons per capita, that is there, and percentage is 13.5%. चाइना का टोटल परसेंटेज में 30% है और पर कैपिटा में 8 टन है, लेकिन भारत का, यूरोप का 8.7% है, यानी पर कैपिटा 6.47 है, लेकिन भारत केवल 6.8% हमारा कंट्रीब्यूशन आज के दिन में है इन द एमिशंस, एंड
पर कैपिटा इज 1.9। तो हमारा सभी निकषों पर हम देखेंगे तो हमारा कम है, और इसलिए भारत इस समस्या के लिए कतई जिम्मेवार नहीं है, लेकिन एक जिम्मेदार देश के नाते हम सॉल्यूशन के लिए हमारा काम कर रहे हैं। इंडिया का और एक पक्ष है कि धरती का ज्योग्राफी जितना लैंड है, लैंड मास का वी हैव जस्ट 2.5% ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास, एंड वी हैव 17% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन and 16% of cattle population. Both require land, water and feed. And we have only 4% of fresh rainwater resources. Despite all these constraints, we have 8% of biodiversity. दुनिया में, देश में जो पर्यावरण पूरक संस्कृति है, उसके कारण ये बायोडाइवर्सिटी आज 8% है, और टोटल फॉरेस्ट कवर लगभग 25% आ गया है। तो ये उसका पक्ष है। नेक्स्ट है जो हमने एनडीसीज लिए, नेशनली डिटरमिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस, पेरिस एग्रीमेंट में 5 साल पहले 12 तारीख को हमने जो मंजूर किया था, वो क्या था? वो ये था कि हमारी एमिशन इंटेंसिटी ऑफ जीडीपी विल बी रिड्यूस्ड बाय 33 to 35%. This was a huge commitment. And I am happy to say that we have already achieved 21%. So remaining 12-13% we'll achieve in next 10 years. Because Paris Agreement 15 में हुआ, लेकिन अमल अभी 21 से शुरू होगा। तो from 1st January 2021 this will start. और इसीलिए ये एक पहलू है। वी हैव सेकेंड टारगेट था कि वी विल हैव इलेक्ट्रिकल पावर इंस्टॉल कैपेसिटी मिक्स ऑफ 40% थ्रू रिन्यूएबल बाय 2030। और आगे बताऊंगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमने सोलर अलायंस का कार्यक्रम किया, जिस तरह से नवीनी ऊर्जा तैयार की, उससे हमें बहुत बढ़त मिली। फिर तीसरा हमारा टारगेट था कि हम 250 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन एमिशंस, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है दुनिया के दृष्टि से भी। इतना हम कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन तैयार करेंगे, और कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन में हम आज उसमें भी अच्छी सफलता मिली है, जो मैं आगे बताऊंगा। ये सारे वॉलंटरी टारगेट्स थे, लेकिन 6 टारगेट्स और भी लिए थे कि सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, भारत की विशेषता है, वी हैव कंपैरेटिवली वेरी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल। हमारे यहाँ 1000 पॉपुलेशन के ऊपर 25 गाड़ियां हैं, 22 गाड़ियां ही है कार्स। दूसरे अनेक देशों में 300, 500, 600, 800 तक है। तो उन देशों का एमिशन नेचुरली ज्यादा होगा। ऐसे हर विषय में हमारे यहाँ एक गरीबी के कारण और दूसरे हमारे जीवन मूल्यों के कारण हमारी लाइफस्टाइल सिंपल रही है। यूज एंड थ्रो वाली पद्धति हमारे यहाँ ज़्यादा नहीं है, यूज एंड यूज वाली थियरी है। क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रोथ प्लान, तो वही तो हमारा उद्देश्य है।
एडेप्टेशन, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है लेकिन आप पर उसके कारण संकट आ सकते हैं, तो उस संकट का सामना करने के लिए जो तैयारी करनी है वो एडेप्टेशन में आती है। और इस सब विषयों के लिए दुनिया ने कबूल किया था कि 100 बिलियन हर साल डॉलर्स, 100 बिलियन डॉलर्स हर साल देंगे, लेकिन अब $1 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया, 1100 बिलियन डॉलर का बात हो गई 11 साल में, लेकिन उतने पैसे कहीं नहीं आए हैं। और टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र भी हो नहीं रही है ज़्यादा। टेक्नोलॉजी आ रही है लेकिन टेक्नोलॉजी प्रॉफिट के साथ आ रही है। हमारा मानना है अगर क्लाइमेट चेंज इज अ डिसास्टर, देयर शुड बी नो प्रॉफिट इन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, बट दैट इज द इशू। नेक्स्ट इज, ये देखने लायक है कि भारत ने जो कमिटमेंट्स लिए वो कितने पूरे किए। तो प्रोबेबली वी आर दी फ्यू कंट्रीज हु आर, लास्ट कॉलम जो है, which is Paris Agreement compliant, यानी our actions lead to maximum temperature rise of 2 degrees to be achieved by 2100, year 2100. So India, Costa Rica, Philippines, Bhutan, मोरक्को और गाम्बिया है, यानी बड़ा कंट्री तो भारत ही है। एकमात्र बड़ी कंट्री है, G20 का एकमात्र कंट्री है कि जो 2 डिग्री कंप्लायंट है। जिनका कम है उसमें यूरोप है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है, स्विट्जरलैंड है, ब्राज़ील है, मेक्सिको है, पेरू है, न्यूजीलैंड है, बहुत सारे देश हैं। और जिनका बहुत ही ज़्यादा है कि 4 डिग्री बढ़ेगा जिसके कारण जलवायु परिवर्तन में, वो है चाइना, जापान, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, यूएई, चिली, बाकी बहुत सारे देश हैं, वो आपको हम दिखाएंगे बाद में। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट इशू है एक, कि 4 रिपोर्ट्स आए हैं। चारों रिपोर्ट्स ने कहा, पहला रिपोर्ट है क्लाइमेट ट्रांसपेरेंसी रिपोर्ट 2020, एंड दैट हैज गिवन that India is the only G20 country to meet its commitments. तो जो हमारे कमिटमेंट है वो सीधे तरीके से ओनली 20% हम G20 के में केवल एक देश है कि जो इसने किया, इसका ये सर्टिफिकेट है। दूसरा है क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर। इन्होंने कहा है क्यों, जैसा मैंने अभी दिखाया कि 2 डिग्री कंप्लायंट, वी आर द वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज विच आर ऑन टारगेट एंड विच देयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ NDCs इज ऑन 2 डिग्री कंप्लायंट। नीचे है यूनेप का परसों ही रिपोर्ट आया है, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप। तो यूनेप का एमिशन गैप रिपोर्ट आया है। उस एमिशन रिपोर्ट में रखा है कि एमिशन ग्रोथ भारत में बहुत कम है और पहले जितनी होती थी कम है, क्योंकि हमारे एमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस हुई है। हमने क्लीन एक्शंस लिए हैं, हमने कार्बन सिक्वेंस्ट्रेशन तैयार किया है, इसलिए हमारे कम हुए हैं। ये यूनेप का रिपोर्ट भी बताता है। फिर चौथा रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, और उसमें भी इंडिया इज अमंग 10 हाई परफॉर्मर्स रेटेड वेरी हाई ऑफ देयर वेल बिलो 2 डिग्री कंप्लायंस। तो ये भारत ने काम करके दिखाया है। तो वी आर, कितने हम जिम्मेवारी से काम करते हैं, दो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइमेट चेंज। ये हमें समझने की बार बार मैं बता रहा हूं। नेक्स्ट, ये देखने लायक है कि हमने एक्शन कैसे किए, इसका दूसरा चार्ट है। ये इंडिया 2 डिग्री कंप्लायंट है। अगले जो 4-5 देश है, चिली, नॉर्वे, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यूके, ये 3 डिग्री कंप्लायंट है, यानी 3 डिग्री उनके एक्शन के कारण
टेम्परेचर में राइज होगा। और जो हाईली इनसफिशिएंट है वो है जापान, रशिया, जर्मन और यूएसए। ये देश 4 डिग्री बढ़ेगी उनकी अगर एक्शंस आज जैसी ही रहेगी। इफ देयर पेस ऑफ वर्क ऑन एनवायरमेंटल फ्रंट रिमेन्स कांस्टेंट एज टुडे, द वर्ल्ड विल विटनेस 4 डिग्री राइज इन टेम्परेचर एट द एंड ऑफ द सेंचुरी। तो इसलिए हमने क्या क्या काम किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व ने एक तो इंडियन सोलर अलायंस तैयार किया, 60 से ज़्यादा देश उसमें शामिल हुए, और ये इंडियन सोलर एजेंसी बहुत सफल रही। एक लीड आईटी है। लीड आईटी का मतलब है कि इंडस्ट्री एंड ट्रेड का हम लीडरशिप कर रहे हैं, स्वीडन और भारत, और भारत के और बाकी दुनिया के इंडस्ट्रीज को बुला के भाई वो कैसे 2 डिग्री कंप्लाइंट होंगे उसकी चर्चा हम करते हैं कि उनका प्लान क्या है और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। मिशन इनोवेशन ये भी प्रधानमंत्री ने न्यूयॉर्क में लॉन्च किया था और आज उसके 24 देश है। फिर यहाँ जो COP 14 हुआ, UNCCD का हुआ था, तो UNCCD में COP 14 बोलते उसको, तो उसमें हमने 2,60,00,000 हेक्टर भूमि रिस्टोर, जो डिग्रेडेड हुई है उसको दुरुस्त करने का संकल्प किया है, और उसमें से अच्छी खासी हमारी उपलब्धि भी है। और चौथा एक्शन है CDRI, कोएलिशन ऑफ डिजास्टर रेजिस्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। ये बहुत प्रधानमंत्री जी की ये चारों पहल, दुनिया ने उसका स्वागत भी किया, सहभागी भी हुए। हमारी क्या स्कीम्स है जिसके कारण हम ये कर सकते हैं? तो हमारा नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज है, हाउ वी विल मिटिगेट आवर challenges and how we will achieve our NDCs। दूसरा नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन में लाल किले से ये बताया था कि 100 शहरों में आने वाले 4-5 साल में हवा के रुख में बदलाव लाएंगे, हवा के स्थिति में बदलाव लाएंगे, अच्छी करेंगे, सुधार होगा। स्वच्छ भारत मिशन तो आप सब दुनिया में नवाजा जा रहा है, जिसमें स्वच्छता का भी मूल मंत्र लोगों ने लिया है, जन आंदोलन बना है, और 12 करोड़ टॉयलेट्स भी बने हैं। स्टैंडर्ड्स एंड लेबलिंग स्कीम है, यानी जो फ्रीज, एयर कंडीशन, इसको जो रेटिंग मिलने लगा और उसका लेबलिंग होने लगा, वो इसमें है। स्ट्रीट लाइटिंग, ये भी अब लगभग सभी जगह, सभी शहरों में स्ट्रीट लाइटिंग ये LED से हुआ, उसके कारण बिजली बचत हुई है। भारत स्टेज 6 में हमने प्रवेश किया है, तो उसका भी परिणाम है। इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, हमारे आज लगभग 3 लाख वाहन इलेक्ट्रिकल हो गए हैं और ये निरंतर बढ़ते जाएंगे, ये हमें विश्वास है। उज्ज्वला योजना में 8 करोड़ से ज़्यादा गैस दिए हैं। ग्रीन हाईवेज मिशन में हज़ारों किलोमीटर के जो हाईवेज बन रहे हैं वो ग्रीन बनेंगे, ऐसी उस विभाग की योजना है और उसका मॉनिटरिंग भी हो रहा है। बायोफ्यूल्स की पॉलिसी बन गई। आपने यहाँ बायोफ्यूल के आधार पे एक हवाई जहाज दिल्ली से देहरादून उड़ा और देहरादून से यहाँ आया, तो ये हो सकता है, बायोफ्यूल पर हवाई जहाज भी चल सकता है प्रदूषण के बिना और एमिशन के बिना, यह हमने दिखा दिया। रिन्यूएबल परचेज है, ऑब्लिगेशंस है, तो जो रिन्यूएबल तैयार होती है नवीन ऊर्जा, सोलर हो या विंड हो, वो मिलेगी, ऐसा व्यवस्था है। फिर नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज है। फिर नेशनल कूलिंग एक्शन प्लान है। हमने सबसे अच्छी तरीके से मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को पालन किया है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट है, वो भी गंगा की सफाई करनी है और उसमें आने वाली सारी गंदगी रोकने का काम बड़े पैमाने पर हो रहा है।
परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड सिस्टम से इंडस्ट्री को लाभ हुआ है। नेशनल एग्रो फॉरेस्ट्री पॉलिसी से किसान ज़्यादा पेड़ अपने मेड़ पर लगाए, ये काम शुरू हुआ है। ज़ीरो इफेक्ट ज़ीरो डिफेक्ट ये प्रधानमंत्री की नारा था और सभी इंडस्ट्री ने उसको काम उस पर शुरू किया। उन्नत ज्योति अफोर्डेबल एलईडी फॉर ऑल, 36 करोड़ से ज़्यादा एलईडी बल्ब आज लग गए हैं और वो सस्ते भी मिले हैं और उससे बहुत मात्रा में बिजली की बचत हुई है। कार्बन एमिशन का मुख्य स्मार्ट सिटी मिशन है, स्टील स्क्रैप रिसाइकलिंग पॉलिसी है, एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन है। तो विभिन्न कार्यक्रमों के द्वारा भारत ये कर रहा है। अब रिन्यूएबल एनर्जी में ये देखो, भारत के जब प्रधानमंत्री जी ने नारा घोषणा की कि वी विल अचीव 100 गीगावाट्स ऑफ 175 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, सारा विश्व दंग रह गया कि कैसे होगा और किसी ने इतना टारगेट नहीं लिया था, लेकिन हमने लिया और 37% लैंडमार्क अचीवमेंट। एंड सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट से अवॉइडेड 7 मिलियन टन्स ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। ये फ्रॉम भारत स्टेज IV एंड भारत 6 में आ गए, तो उसका भी फायदा हो रहा है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी एयर नेविगेशन के द्वारा रिड्यूसिंग कार्बन फुटप्रिंट कम करने का कोशिश अच्छी सफल हुई है। नेक्स्ट, नेशनल एडेप्टेशन फंड, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और यह एडेप्टेशन फंड में 30 कार्यक्रम अभी चल रहे हैं। फिर 1 करोड़ हेक्टर पर डिग्रेडेड लैंड रिस्टोर्ड हो गई है, 2.6 करना है, तो बाकी भी 10 साल में हम पूरी करेंगे, यह हमारा पूरा विश्वास है। हर साल क्रॉप एरिया भी बढ़ रहा है, तो वो भी एक लैंड रिस्टोरेशन का ही हिस्सा है। फिर इंडिया ट्री कवर हैज इंक्रीज बाय 15,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इन 6 years एंड टोटल कार्बन स्टॉक इंक्रीज बाय 1.62 बिलियन टन्स। ये कार्बन स्टॉक बढ़ना ये बहुत महत्वपूर्ण है, 2.5 बिलियन टन या 3 बिलियन टन, ये डबल करना है इससे भी, तो वो हम करेंगे। नेक्स्ट, अभी हमने एक सभी इंडस्ट्रीज क्या कर रहे हैं, क्योंकि आखिर वहाँ प्रदूषण होता है, वहाँ एमिशन निकलते हैं, तो एमिशन कम कैसे करेंगे, इसके लिए हमने CEOs की कॉन्फ्रेंस की और कॉन्फ्रेंस में जो 24 प्रमुख उद्योग आए थे उसमें से 4-5 लोगों का यहाँ, क्योंकि प्रेजेंटेशन लंबा न हो इसलिए 5-6 लोगों का यहाँ उल्लेख किया है, यानी दिशा पता चलेगी कि इंडस्ट्रीज भी किस दिशा में काम कर रहे हैं। रिलायंस ने कहा है कि कार्बन न्यूट्रल स्टेटस 2035 तक वो प्राप्त करेंगे। JSW ने कहा है कि CO2 एमिशन 2030 तक 41% कम करेंगे और नेट जीरो एमिशन 2050 में वो होंगे। टेक महिंद्रा ने कहा है कि रिन्यूएबल पावर 50% 2025 तक और कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2030, ये उन्होंने तय किया है उनका लक्ष्य। ITC लिमिटेड ने 50% ऑफ इट्स टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेस इन नेक्स्ट डिकेड एंड 50% एमिशन रिडक्शन, ये दोनों टारगेट लिए। डालमिया सीमेंट ऑलरेडी 100% रिन्यूएबल एनर्जी चल रहा है एंड डबलिंग द एनर्जी प्रोडक्टिविटी बाय 2030 एंड कार्बन निगेटिव बाय 2040। निगेटिव यानी कार्बन उत्सर्जन जितना होगा उससे ज़्यादा वो सिक्वेंस्ट्रेशन करेंगे। टाटा मोटर्स ने कहा है 100% रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी फॉर ऑपरेशंस बाय 2030। तो ये भारत के उद्योग भी भारत सरकार के प्रयासों में मदद कर रहे हैं और इससे ही देश का पूरा होगा। और ये जो स्वीडन के साथ हम इंडस्ट्रियल लीडरशिप का ट्रैक चला रहे हैं, उसमें इसका दुनिया के 14 देश उसमें सहभागी हुए हैं। उनके इंडस्ट्रीज को भी हम हर बार बुलाते हैं और वो अपना रिपोर्ट पेश करते हैं। मूल मुद्दा है, 2 इशू प्रधानमंत्री ने पेरिस समिट में बहुत आग्रह से रखे। एक रखा क्लाइमेट जस्टिस, गरीब के साथ न्याय होना चाहिए, और दूसरा रखा लाइफस्टाइल, जीवन शैली कैसे हो।
तो इसके लिए करंट क्लाइमेट एफर्ट्स पुट बर्डन ऑन इकोनॉमिकली वीक, एम टू प्रोवाइड डिग्निफाइड लाइफ टू सिटीजन्स एंड मीट देयर एस्पिरेशंस। लेकिन जो आज वास्तविकता है कि रिचेस्ट 1% अकाउंटेड फॉर 15% ऑफ हिस्टोरिकल एमिशंस एंड पुअरेस्ट 50% ओनली 7%. Richest 10% use 31% of carbon budget, while poorest are 50% have used only 4%. तो विकास के लिए कार्बन उत्सर्जन बढ़ेगा तो उसको जगह तो चाहिए विकसनशील देशों को, तो ये एक मुद्दा है, हम आग्रह से रखते हैं. नेक्स्ट, लास्ट, कॉन्स्टिट्यूटेड, हमने एपेक्स कमेटी बनाई है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट के लिए. फिर सभी मंत्रालयों के साथ और सभी उद्योगों के साथ इसका कोऑर्डिनेशन चलता है. हमने इंडस्ट्री के साथ पार्टनरशिप की है और सस्टेनेबल लाइफस्टाइल, यही तो भारत की विशेषता है. भारत में हर चीज़ का बेवजह फेंक देना ये मंजूर नहीं है, तो जितना ज़्यादा से ज़्यादा बार बार उपयोग होगा वो हम करते हैं. तो ऐसी सस्टेनेबल लाइफस्टाइल हमारी है, तो वो भी विकसित होते होते भी वो जारी रहे, ये प्रयास है. मुझे जो प्रेजेंटेशन करना वो इतना ही था, 15 स्लाइड से किए हैं और पूरे विषय को आपके सामने रखा है कि भारत ने, आई कैन से इन द सम अप दैट इंडिया though not a cause of problem of climate change historically, where our contribution is just 3%, and even our present emission level is just 6% of the world what it emits today. But despite this, India has behaved more responsibly than many other countries in mitigating this climate change challenge, and we have walked the talk, and we have nearly achieved our targets of NDCs much before the Paris Agreement actually starts. Remaining targets we will achieve during the course of Paris Agreement till 2030 as promised. And so that's all from my side. So we will always behave internationally also responsible, but our Prime Minister Narendra Modi is giving and providing a dynamic leadership to the cause of environment and to the action plan with huge investments made in sustainable environmental practices. Thank you. धन्यवाद सर. फ्रेंड्स, डिटेल प्रेजेंटेशन के बाद अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप सवाल पूछ सकते हैं. लगता है सर डिटेल आपने एक्सप्लेन इतना कर अच्छा दिया है कि आपको achievements सवाल नहीं है. सबको बहुत बहुत धन्यवाद. Yes. धन्यवाद सर. धन्यवाद फ्रेंड्स. हाँ बताओ ना. नहीं, अलग हट के आज हटो मत सर. आज अलग हटो मत. ये सर ऐसा है, ये आज का विषय है. बाकी मैं मिलूंगा शाम को, मैं आपके लिए उपलब्ध हूँ. नहीं, बंगाल पर है सर. हाँ, तो बंगाल के बारे में हमने उस पर नहीं, मैं उसका भी बाइट अलग से देने वाला हूँ. ठीक है. थैंक यू सर. यस. थैंक यू फ्रेंड्स. हाँ, क्या? यस. सोलर से रिलेटेड कोई बिल विंटर सेशन, मतलब जब भी सेशन होगा पार्लियामेंट का, सोलर एनर्जी या एनर्जी से रिलेटेड कोई सेपरेट बिल कोई गवर्नमेंट प्लान कर रही है? नहीं, बिल की जरूरत नहीं है, एक्शन ही चल रही है, तो इसमें कोई बाधा नहीं है. सोलर पावर को इनकरेज करने के लिए नहीं, इनकरेज किया ही है और इसके कारण आप हुए ही है. मैंडेटरी में आपको बताऊं, हमारे जो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशंस हैं वो उसी का वो मैंडेटरी हैं, और ये नीतिगत निर्णय रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन का वही इन चीज़ों को प्रमोट कर रहा है. तो ये एक तरह से सरकार का कमिटमेंट रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन में दर्शाता है. क्योंकि अभी आपके घर में आप अगर सोलर लगाओगे तो वो ग्रिड में लेना बंधनकारी है, वो लेंगे, वो ऑलरेडी है. बहुत बहुत धन्यवाद. धन्यवाद सर.
हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बंगाल की सुंदर भाषा, बंगाल की सबसे अच्छी संस्कृति, बंगाल की महान संस्कृति, बंगाल सर्वाधिक मृदु भाषा है। और ममता जी प्रधानमंत्री जी के लिए भी जिस शब्दावली का प्रयोग करती है वह बताता है कि ममता जी ने बंगाल को कितने नीचे ले गए। इट स्पीक्स वॉल्यूम्स। और दुख होता है, बंगाल हम सबका है, बंगाल हमार सोनमार बंगाल, बंगाल के लिए हम सब लोग गौरवान्वित होते रहे, देश गौरवान्वित करता रहा है। आजादी की लड़ाई हो या सांस्कृतिक लड़ाई हो या रिलीजियस रिवाइवलिज्म हो, कोई भी हो, उसकी शुरुआत की जन्मस्थली बंगाल रही है। लेकिन आज जिस ममता जी ने बंगाल को जिस लो लेवल पर ले आकर के खड़ा किया है, ये सच में बहुत ही चिंताजनक बात है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय में चुनाव में लोग ममता जी को नमस्कार कहने वाले हैं और भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। 200 सीटों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीत करके आएगी, ये मैं आपको बता रहा हूं। यहां पॉलिटिकल वायलेंस और डेथ ऑफ डेमोक्रेसी हो चुकी है। मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, We have lost 130 बीजेपी वर्कर्स। 100 का तर्पण यानी उनके अंतिम संस्कार में और उसके बाद की पूजा मैंने खुद कलकत्ता में आकर के 100 के परिवार, और ये कोई मैं दिखाने के लिए नहीं कह रहा हूं, इन कैमरा मैंने तर्पण किया। सारे परिवार के सदस्य वहां उपस्थित थे। सभी परिवारों के लोगों से मैं मिला हूं। जिन हालातों में उनका मर्डर हुआ, पॉलिटिकल मर्डर हुआ, इसको बंगाल की जनता कभी माफ नहीं करेगी। और बंगाल की जनता को तय करना है कि क्या ऐसी सरकार और ऐसी संस्कृति को यहां पर जगह देना है। जब इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स सेफ नहीं है तो कॉमन मैन का क्या हाल होगा? व्हाट विल बी द प्लाइट ऑफ द कॉमन मैन? आम आदमी की क्या स्थिति होगी? लॉलेसनेस, अराजकता चरम सीमा पर। एडमिनिस्ट्रेशन मैंने पहले कहा कोलैप्स कर चुका है। हमारे एमएलए देवेंद्र नाथ रे, बप्पी घोष, पूरन चंद्र दास, गौतम पात्रा, सुदर्शन परमानिक, शेख लियाकत, गणेश रॉय, शंभारू बर्मन, दीपक मंडल, मनीष शुक्ला, ये सब पिछले 2 महीने में इनका मर्डर हुआ है। इन द पास्ट 2 मंथ्स मैंने सिर्फ आपके सामने 7-8 नाम बताए। ऐसी संख्या और श्रृंखला 130 की। ये बंगाल की सभ्यता और राजनीतिक सभ्यता का सूचक है क्या? ये ममता जी के राजनीतिक कार्य करने का तरीका है क्या? बंगाल की जनता को तय करना पड़ेगा और मैं उनसे निवेदन करूंगा कि ऐसी सरकार को लॉक स्टॉक एंड बैरल इनको विदा करना चाहिए और ऐसी सरकार भारतीय जनता पार्टी के उसमें बनानी चाहिए जिसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास को लेकर। जब हम भ्रष्टाचार की बात करते हैं तो कट मनी इज द ऑर्डर ऑफ द डे। कट मनी जीवन का तरीका हो गया है वेस्ट बंगाल। और टोलाबाजी और सिंडिकेट में भी बालू सिंडिकेट और कोयला सिंडिकेट, ये जिसको बोलते हैं कि यहां लूट हो रही है, लूट और राजनीतिक संरक्षण में हो रही है। ममता जी के द्वारा डायरेक्टली संरक्षण में हो रही है। तो इसलिए टोलाबाजी भी हो रही है, कटमनी भी हो रहा है, सिंडिकेट भी हो रहा है, कोयला और बालू पर सिंडिकेट चल रहा है। और तो और मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि कटमनी और पैसे और रिश्वत अंतिम संस्कार पर भी देना पड़ रहा है। दिस इज द सिचुएशन। मेरी बात किसी को लगती हो तो चैलेंज कर देना, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे और घूस और उसके लिए भी ड्राइव चल रहा है, वो हमको समझना चाहिए। ममता जी क्या कहती हैं? 75% बीजेपी, 75% टीएमसी को कटमनी दो, 25% अपने आप रख लो और लोगों की छुट्टी करो। ये संस्कार है, ये बातचीत। उसी तरीके से अभी कहा गया कि ममता जी द्वारे द्वारे, पहले ममता जी वारे न्यारे, अब द्वारे द्वारे और चुनाव के बाद फिर वारे न्यारे। लेकिन बंगाल की जनता अब छोड़ने वाली नहीं है। द्वारे द्वारे घूमो, चाहे जैसे घूमो, आपको बंगाल की जनता छुट्टी देने वाली है। जमीन आपकी खिसक चुकी है, ये हम आपको बताना चाहते हैं। कोविड का ट्रेजेडी हुई,
Modi ji is known for the management of COVID management, and Mamata is known for mismanagement of COVID. कोई मैनेजमेंट नहीं। आपने देखा टेलीविजन पर, आपने दिखाया किस तरीके से हॉस्पिटल्स में डेथ रिपोर्ट नहीं हो रही थी, केसेस रिपोर्ट नहीं हो रहे थे। सेंट्रल टीम को कलकत्ता के हॉस्पिटल में घूमने नहीं दिया गया। और उसके साथ साथ आपको पता है राशन में चोरी, आपको पता है कि किस तरीके से उस समय अम्फान में भ्रष्टाचार किया गया। कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्या कहा? कलकत्ता हाईकोर्ट ने कहा कि आप सीएजी से इसका ऑडिट करें, और इस ऑडिट के खिलाफ ममता जी सुप्रीम कोर्ट में गई। एक तो भय क्या, इतना भय क्यों है आपको? क्यों आपको इतना डर लग रहा है? हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस राधाकृष्णन कहते हैं गेट इट ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ये पब्लिक मनी है और 1000 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री जी ने एडवांस दिया, 1200 करोड़ रुपए बाद में दिया गया, लेकिन कोई हिसाब किताब नहीं, और जो पैसे मिले वो टीएमसी के कार्यकर्ताओं के अकाउंट में। अब है तो भय क्या? सुप्रीम कोर्ट में जाने का मतलब है यू आर हैंड इन ग्लव विद कमीशन एंड करप्शन। आप पोषक हैं करप्शन के, आपके द्वारा करप्शन हुआ है और आपके पालन पोषण में करप्शन बढ़ा है, इस कारण से आप सुप्रीम कोर्ट में गई। नहीं तो आपको कहना चाहिए था दूध का दूध पानी का पानी होगा। और प्रशासन में प्रशासक जो होता है उसको ही शुड नॉट ओनली बी ऑनेस्ट, ही शुड लुक टू बी ऑनेस्ट। हियर ममता जी looks to be dishonest and is dishonest. This is what I would like. The activities show, ये बताती हैं कि किस तरीके का हाल चाल बना करके रखा। टीएमसी की सरकार चाल चोर सरकार, त्रिपाल चोर सरकार, राशन चोर सरकार, ये टीएमसी की सरकार के सिनोनिम्स हैं। ये सरकार के पर्यायवाची शब्द हैं। चाल चोर, त्रिपाल चोर, राशन चोर, क्या हाल बना करके रखा। और पहले क्या कहती थी? मां माटी मानुष, और आजकल क्या कहती हैं? तानाशाही, तुष्टीकरण और टोलाबाजी। ये आज की स्थिति बन गई है। मित्रों, हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि ऐसी सरकार, मैंने पहले कहा, अभी आपको पता है फार्मर्स के विषय पर प्रधानमंत्री जी ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में 10 करोड़ लोगों को 2-2 हजार रुपए और 6,000 रुपए साल का 3 किस्त में देने का तय किया। अप्रोक्सीमेटली 70 लाख किसान बंगाल के इससे वंचित हैं। 70 लाख लोग वंचित हैं, उनको ये पैसा नहीं मिल रहा है। और ममता जी क्या कहती हैं? ये सीधे हमको दो। और मोदी जी और हमारा क्या कहना है कि यह सीधे किसान के खाते में जाएगा, उसके अकाउंट में जाएगा। और ममता जी कहती हैं आमा के दिए दाओ, आमा के दिए दाओ, कटमा नहीं, कटमानी, कटमानी। ये कटमनी का तरीका है, उसको हमको समझना चाहिए। उसी तरीके से आयुष्मान भारत, लगभग 4 करोड़ 67 लाख पीपल आर डिप्राइव्ड ऑफ 5 लाख हेल्थ कवरेज पर ईयर पर फैमिली। 5 लाख पर ईयर पर फैमिली। एंड कितने लोग? 4 करोड़ 67 लाख। आज 1 करोड़ 31 lakh people have taken the benefit all India. 15,500 crores have been spent for खर्च हो चुके हैं गंभीर बीमारियों के लिए। लेकिन बंगाल के गरीब लोग, और कौन आते हैं इसमें? रेडी वाला, फेड़ी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टैक्सी वाला, मेड सर्वेंट जो घर में काम करते हैं, जो घर में काम करने वाले हैं, जो चौल में काम करने वाले, ऐसे गरीब लोग जो पल्लेदार हैं, जो अनाज की बोरियां उठाते हैं सब्जी मंडी, उनके लिए बाय प्रोफेशन है। ये कास्ट से नहीं है, बाय प्रोफेशन। 12 करोड़ 74 लाख परिवार, 55 करोड़ पीपल को ये 5 लाख रुपए का फैमिली का पर ईयर का बेनिफिट है हेल्थ में, गंभीर बीमारियों के लिए, 2000 से ज्यादा गंभीर बीमारियों के लिए। लेकिन यहां होबे जरूर होबे। मार्च महीने के बाद, मई महीने के बाद होगा, बीजेपी की सरकार आएगी, उसके बाद होगा। तो ये बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। इसके साथ साथ अगर मैं बिहार के अभी चुनाव की बात कहूं तो मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अभी चाहे बिहार का चुनाव,
चाहे कर्नाटक का चुनाव हो, चाहे दुबाका का धमाका हो, चाहे उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, और चाहे मैंने बताया मध्य प्रदेश का चुनाव, सभी जगह परिवार की पार्टियों को लोगों ने नकार दिया है और भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किया है। और यही हाल बंगाल में भी होगा। यहां भी पारिवारिक पार्टी को लोग नमस्ते कहेंगे और डेवलपमेंट के लिए मोदी जी के साथ डबल इंजन की सरकार को सपोर्ट करेंगे। आज जो घटना घटी है वह ममता जी के फ्रस्ट्रेशन की, बौखलाहट की कहानी है। उनको दिख गया है कि जमीन खिसक चुकी है और जिस शब्दों का वो प्रयोग कर रही है, जिस शब्दावली का प्रयोग कर रही है, मुझे वो शब्द रिपीट करने में भी शर्म आती है। एक बंगाल के चीफ मिनिस्टर, उनको शायद मालूम नहीं है कि इस पद की गरिमा क्या होती है, इसकी गरिमा को कैसे संभाल के रखा जाता है। और ये बंगाल, जैसे मैंने कहा, कैसा बंगाल बनाना चाहते हो? ममता जी का बंगाल बनाना चाहते हो या रविंद्रनाथ टैगोर का बंगाल बनाना चाहते हो? श्री अरविंदो का बंगाल बनाना चाहते हो? श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बंगाल बनाना चाहते हो? सुभाष चंद्र बोस का बंगाल बनाना चाहते हो? मैं आपके साथ बड़े स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमिटेड है। हम आने वाले समय में डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। वेस्ट बंगाल में भी सरकार बनेगी। ये जो हरकतें आज हुई हैं, ऐसी हजार हरकतें हो, हम हर कंस्टिट्यूंसी में जाएंगे, हर जगह अपने विचार को रखेंगे। और जो हमको समर्थन मिल रहा है, मैं अपने कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करना चाहता हूं, मैं उनको नमस्कार करना चाहता हूं। आपने देखना है किस तरीके से आज लगभग 50 मोटरसाइकिल गायब कर दी गई हमारे रैली से, उनको पीटा गया, उनको मोटरसाइकिल मिलनी नहीं है दोबारा, वी नो दैट। लेकिन हमारा एक एक कार्यकर्ता लड़ने को तैयार है और उनको मालूम नहीं है ये भारत भूमि, ये बंगाल की भूमि, इसने क्रांतिकारियों को पैदा किया है और यही क्रांतिकारी हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में फिर से प्रजातंत्र को यहाँ बहाल करेंगे और पूरी ताकत और शिद्दत के साथ हम चुनाव लड़ेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपको जो प्रश्न करना है, प्रश्न आप बांग्ला में भी कर सकते हैं, इंग्लिश में भी कर सकते हैं, हिंदी में भी कर सकते हैं। पार्टी सत्ता में है, केंद्र में ममता बनर्जी, उनकी सरकार का ये कहना है कि जब आपके पास बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ और सारी फोर्सेस हैं, तो फिर आज बंगाल में आप पर ये हमला क्यों? क्या ये आपकी पार्टी भी उनके शब्दों में नौटंकी बनाने के लिए कर रही है? ऐसा है कि ममता जी को प्रशासन नाम की चीज का आइडिया जीरो है। शी नोज नथिंग अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन। कभी भी सीआईएसएफ, सीआरपीएफ सड़क पर खड़े होकर के पत्थरबाजों को नहीं रोकती, वह सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करती है। उनका काम सब्जेक्ट को प्रोटेक्ट करना है। उनका काम सड़क पर खड़े होकर के जो लोग वहां पत्थर इकट्ठे कर रहे थे उनको रोकना हमारा काम नहीं है, वो स्टेट पुलिस का काम। और स्टेट पुलिस को प्रश्रय देना ये ममता जी का काम है। ये मेरा चार्ज है। जी नमस्ते, मैं ऋतिक एबीपी आनंदों से। आपसे सवाल ये है कि बंगाल की वर्तमान स्थिति को मद्देनजर रखते हुए पार्टी अध्यक्ष होने के नाते केंद्र सरकार से आपसे क्या गुजारिश रहेगी? क्या आप उनसे राष्ट्रपति शासन की मांग करेंगे? और दूसरा सवाल, आए दिन सुनने में आता है कि तृणमूल के तमाम प्रमुख नेता बीजेपी के संपर्क में है, बहुत से नेता हाल ही में आपको ज्वाइन भी किया है। ऐसे और कितने प्रमुख नेता है जो बीजेपी में शरीक होने वाले हैं? थैंक यू। देखिए, जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मेरा कमेंट और मेरी अंडरस्टैंडिंग बंगाल के बारे में, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हैज फेल्ड, इट हैज क्रम्बल्ड डाउन। लेकिन हम प्रजातांत्रिक तरीके से लड़ने वाले नहीं, इसलिए हम प्रजातांत्रिक तरीके से ममता जी को पदच्युत करेंगे थ्रू डेमोक्रेटिक मीन्स, नंबर 1। नंबर 2, आपका क्वेश्चन क्या था? तृणमूल के बहुत से तमाम नेता आपके पास। ऐसा है, सच्चाई की जीत होती है, इसलिए सच्चाई के साथ लोग जुड़ना चाहते हैं। आते रहेंगे, कारवां बनता रहेगा, हम चलते रहेंगे। नड्डा जी, मैं नीरज पांडे हूँ, एबीपी न्यूज। सर,
मेरा सवाल ये है कि आज चूँकि हम लोग भी थे, आपके काफिले पे हमला हुआ, पत्थरबाजी, हमारी भी गाड़ी टूटी, क्या इसको लेकर आप लोग यहाँ की लोकल पुलिस के खिलाफ कोई जांच की मांग करेंगे, कुछ कार्रवाई के लिए कहेंगे या सीबीआई जांच के लिए कहेंगे? देखिए मैं व्यक्तिगत रूप में जनता से सीधे जुड़ने वाला आदमी हूँ और पार्टी की दृष्टि से भी जनता से जुड़ता हूँ। प्रशासन को जानकारी देना हमारा काम है, वो हम जरूर देंगे, लेकिन हमको कोई आशा नहीं है यहाँ के प्रशासन से। हम जनता के बीच में ही अपनी आवाज को बुलंद करके हम यशस्वी हैं। नड्डा जी, मैं आमोद टीवी 9 से एक प्रश्न, बंगाल में मैं 2-3 दिन से घूम रहा हूँ और जो टीएमसी की तरफ से आ रहा है बार बार, वो बाहरी और भीतरी को लेकर आ रहा है। वो कह रहे हैं कि बीजेपी वाले बाहरी हैं और यहाँ तो भीतरी दीदी है, तो आप लोग इस पॉइंट को कैसे काउंटर करें? देखिए, भारतीय जनसंघ की स्थापना हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने की और एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेंगे, इसकी स्थापना करने का विचार बंगाल से आया। हमारा दायित्व तो बनता है कि बंगाल को आत्मसात करते हुए उस विचारधारा को ध्यान में रख करके हम यहाँ पर अपने आप को काम भी करें और उनके बताए रास्ते पर भी चलें। एक बात तो हमको ये बड़े स्पष्ट होनी चाहिए। दूसरा, जो ममता जी का बंगाल है वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, वो बंगाल नहीं है। बंगाल वो है जो हम बता रहे हैं और हमको जो पीड़ा है वो इस बात की है कि बंगाल को गलत लोगों ने हाथ में ले लिया है, इसको सही हाथों में देना ये हमारी जिम्मेवारी है ताकि बंगाल की संस्कृति आगे बढ़ सके। और इसलिए बाहरी और भीतरी नहीं, भीतर के लोग हैं जो हमारा सपोर्ट करेंगे। हम बाहर के वोट से जीतने वाले नहीं हैं, हमको बंगाल के लोगों का आशीर्वाद मिलेगा, ये हमारा विश्वास है। নাড্ডা জি যে কথাটা বললেন না, কথাটা উনি লুকিয়ে রাখলেন, উনি হচ্ছেন বাংলার জামাই, এটাও একটু শ্রেয়সী আছে ফ্রম টাইমস নাও। So, hi, so my question to you is, the BJP has been talking about the citizenship amendment law that has been passed by the parliament. There have been statements made that by the end of January it will be implemented. Has that been done? Will that be done in Bengal? Because Chief Minister Mamata Banerjee has time and again said that it's the centre's prerogative to make the law, but it's the state that will implement it, and we will not allow CAA to be implemented in West Bengal in any way. And she has been protesting against it. So I would want to know, when will CAA be implemented in Bengal and how will it be done? देखिए, पार्लियामेंट के एक्ट से पास हो चुका है सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, अब उसके रूल्स बन रहे हैं। जैसे ही रूल्स बन जाएंगे वो इम्प्लीमेंट होगा और लेटर और स्पिरिट में इम्प्लीमेंट होगा और यहाँ भी होगा। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि यह प्रजातंत्र के मूल विचार से भिन्न है, नंबर एक। नंबर दो, यह इनटॉलरेंस की असहिष्णुता की प्रकाष्ठा है। जी न्यूज पूजा, प्लीज, जी न्यूज पूजा। सर, पूजा फ्रॉम जी न्यूज। सर, हमने पहले देखा है आपकी पार्टी में नेता जो है एक विषय पर काफी डिवाइडेड है, वो विषय है प्रेसिडेंट्स रूल इन बंगाल। आज के मौजूदा परिस्थिति को मद्देनजर रखते हुए क्या आप प्रेसिडेंट्स रूल की मांग करते हैं? देखिए, सेंटिमेंट्स जो हैं वो विचार में कोई लोग उसको एक्सप्रेस कर देते हैं। सेंटिमेंट्स तो ये हैं कि यहाँ लॉलेसनेस है, सेंटिमेंट्स तो ये हैं कि यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन क्रम्बल डाउन कर गया है, इसलिए लोग कह दें कि प्रेसिडेंट रूल लगना चाहिए, वो बात अलग है। लेकिन मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि हम प्रजातांत्रिक तरीके से ही आगे बढ़ते हैं, इसलिए डेमोक्रेटिक एथोस को हम ध्यान में रखते हैं, विच ममता जी डज नॉट। सौगत। Good evening, Nadda ji. This is Shoghat Mukhopadhyay from CNN News 18. Sir, just needed to know, when you planned this trip to Bengal this time, you've been here multiple times in the past, but this time around, you specifically chose two constituencies. One in Bhawanipur, which is Mamata Banerjee's constituency. The other was Diamond Harbour, which is Abhishek Banerjee's constituency. Was there a political message that you wanted to give out when you actually visited these two constituencies, and what is your experience besides the violence?
What is your experience from these two constituencies? देखिए, it's a very good question. Number one. Number two, ये दोनों ही कंस्टिट्यूंसी अराजकता का, असहिष्णुता का और एंटी डेवलपमेंट का उद्गम स्थान, लॉलेसनेस का उद्गम स्थान। इसलिए इस जगह पर जाना आवश्यक था, क्योंकि भ्रष्टाचार का उद्गम स्थान यही है, इनटॉलरेंस का उद्गम स्थान यही है, असहिष्णुता का उद्गम स्थान यही है, भ्रष्टाचार का उद्गम स्थान यही है, और विकास। आज आपने देखा होगा, पांडे जी आप भी थे, आलोक जी, सब आप लोगों ने देखा होगा डायमंड हार्बर का क्या हाल है। कल आपने भवानीपुर भी देखा, मैं जिन घरों में गया, पानी की व्यवस्था नहीं, टैंकर माफिया वहां दंदना रहे। दिस इज ममता कंस्टिट्यूएंसी। तो उसको फर्स्ट हैंड रीडिंग करना ये हमारा काम है, और इसलिए पर्पसली, बिकॉज दे आर द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ करप्शन, इनटॉलरेंस, लॉलेसनेस, ये सब चीजों का वो स्थान है, इसलिए हमने इसको चुना। पीटीआई देखिए, I don't know what is the observation of High Court. It will be difficult for me to comment without going through the observation of the High Court. But yes, करप्शन को छुपाना ममता की आदत है, करप्शन के साथ चलना ये ममता जी की आदत है, और लॉ को प्रोटेक्ट करना ये कोर्ट की जिम्मेवारी है, और कोर्ट ने बारंबार किया है। अभी हाई कोर्ट ने ही तो कहा था कि अम्फान के फंड्स का ऑडिटिंग करो, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों गई? इट शोज ऐतो भय क्यों ना, ये भय है। तो अभी हाई कोर्ट में भी अगर हुआ है सोने के स्मगल को लेकर के, ये सब चीजें इनके पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। PTI. Sir, this is Pradipto from PTI. So I have two questions. One is regarding the ongoing farmer protest in Delhi. What do you have to say regarding it? And secondly, there has been question has been doing around in Bengal about who would be BJP's chief ministerial face. So what are your views regarding it? देखिए, जहां तक किसान आंदोलन का सवाल है, हमारे लोगों ने किसान आंदोलन के नेताओं के साथ बारंबार बातचीत की है, और हम सब लोग डायलॉग के माध्यम से आगे बढ़ना चाहते हैं, डायलॉग के साथ बढ़ना चाहते हैं। लेकिन हाँ, जो किसान के दृष्टि से उनके क्वेश्चंस थे, उनका हम लोगों ने बारंबार जवाब दिया है, और उनके उन बातों पर कोई भी उनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। सो इट इज अल्टीमेटली द डायलॉग विच इज गोइंग टू टेक प्लेस, नंबर वन। नंबर टू, आपने बात की यहाँ के चीफ मिनिस्टर, ये स्ट्रैटेजी का मामला होता है, ये इंटरनल स्ट्रैटेजी का मामला होता है। वी विल क्रॉस द ब्रिज व्हेन वी कम टू दैट। पिछले कल के जो इंसिडेंट हुआ और आज आपका बम्बई में जो अटैक हुए थे, इसके ऊपर गवर्नर ने चीफ सेक्रेटरी और डीजी पुलिस को बुलाए थे मीट करने के लिए, और दोनों ने उनके साथ मीट नहीं किया। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, ऑल पैरामीटर्स शो दैट ऑल पैरामीटर्स शो वन सेक दोनों ने मीट किया है। ये राज्यपाल भी बार बार इसको इंटरवेन कर रहे हैं, मगर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। देखिए, ऑल पैरामीटर्स शो दैट एडमिनिस्ट्रेशन हैज क्रम्बल्ड डाउन by the chief minister. There is a disrespect for the constitutional authority and constitutional integrity. ये स्पष्ट दिखता है, इसलिए एनार्की है, और एनार्किस्ट अप्रोच से ममता जी चली हुई है, और इसका विरोध करना ये हमारी जिम्मेवारी है, और जनता के बीच में इसको उजागर करना ये हमारी जिम्मेवारी है, ये हम बखूबी करेंगे। Final question from Himanshu, Republic. आपके साथ भी हुआ जी, उनकी भी गाड़ियां टूटी हैं।
200 प्लस स्ट्रेट अवे हम जाएंगे। जो जनता की में जो नजर आया प्यार भारतीय जनता पार्टी के प्रति और जिस तरीके का भय का वातावरण ममता जी ने बनाया था, उस भय को तोड़ते हुए आज लोग डायमंड हार्बर में भी जिस तरीके का उन्होंने हमारा स्वागत किया है, वह इस बात को बताता है कि लोगों ने उनको नमस्कार कहना तय कर लिया है और उनका तिरस्कार तय है। सर, उज्जवल रॉय फ्रॉम ANI। सर, लगातार एक सवाल किया जाता है ममता बनर्जी की ओर से सीएम कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो CBI को यूज़ करती है और जो सेंट्रल टीम है उसके माध्यम से पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर रही है। कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है जिससे कि लोग डर से पार्टी छोड़ के बीजेपी में आने की कोशिश कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बहाने लगाना ममता जी से सीखे कोई, सच्चाई से दूर रहना ममता जी से सीखे कोई। सच अच्छा नहीं लगेगा कि झूठ बोलना, लेकिन सच्चाई से परे रहना, दूर रहना, ये ममता जी के पर्सनैलिटी का इनबिल्ट इंग्रेडिएंट है। तो उस पर जवाब क्या दिया है? আমি জানি অনেকের আরো প্রশ্ন আছে, কিন্তু নাড্ডাজির আজকে অনেক ব্যস্ত শিডিউল আছে। তাছাড়া তুমি একটা লাস্ট প্রশ্ন করে ছেড়ে দিচ্ছি, অনেকক্ষণ তুলে আছে। You see, we are a political party. It is our responsibility to educate the people and fight out. And ये तो ममता है, हमने तो इंदिरा गांधी के खिलाफ लड़ाई लड़के जंग जीती है, तो हमको तो डेमोक्रेटिक तरीके से लड़ना आता है। और फिर जो लोग कहते हैं कि शासन हमारा है, उनके हाथ से शासन छीनना भी जनता को आता है। অনেক ধন্যবাদ নাড্ডাজিকে। আজকে অনেক খুবই গুরুত্বপূর্ণ কথাবার্তা বললেন এই পরিস্থিতির মাঝখানে। আর আশা করছি সামনের দিনে উনি আবার আসবেন অনেকবার, তখন আপনাদের সঙ্গে আবার ওনার দেখা হবে। এবং অনেক অনেক ধন্যবাদ, আপনারা আজকে এই ধরনের প্রোগ্রাম চেঞ্জের সত্ত্বেও সবাই মিলে আসতে পেরেছেন। অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেক অনেক ধন্যবাদ। Listen. These 5-member delegations that you're seeing met. You're seeing these 5 members here who met the President of India, gave a memorandum. The copies are here. A few copies are here which you will have to share. That will be given to you. Basically, we are asking for the repeal of these agri laws and the electricity amendment bill. And we said our point to the President was these were passed in a very anti-democratic manner without any proper discussion. A proper consultation and discussion would have prevented this sort of a situation from happening. A very heroic, historic strike, courageous by the farmers and which is growing by the day. Keeping that in mind, the government should immediately repeal these bills and the Electricity Amendment Act, and then discuss and see what sort of a thing needs to be done. But right now, that is what is required. That is the essence of our demand. As always, as always, he said we'll look into it and pass it. Regarding all these 3 bills, I think in the parliament there was a request from all opposition parties that these bills should be discussed in depth or we should send to select committee, because that will get opportunity to discuss in detail. But unfortunately, not a single suggestion from opposition was accepted, and in hurry, all these 3 bills were passed. That is one of the reasons why we started getting reaction from farming community.
I must say that political parties are not directly involved in this agitation initiative. But Parliament Committee has realized that all these bills ultimately not protecting their main interests. There was a worry regarding minimum support price. That minimum support price issue was not mentioned anywhere in the bill. So that is also very disturbing thing for the farming community. And that is the reason what we have seen last practically 12-13 days in this cold, they are on the street, very peacefully, they are expressing their unhappiness, and I think it's on the duty of the government to take interest and try to resolve this issue. But barring some discussion, nothing has happened, and that is the reason ultimately we decided to approach highest authority President of India and with a request that they should convey the feeling of the farming community to the government. Good evening. We met the President and we informed him of our view regarding these bills. And we said that it is very important that these bills are taken back. Couple of points we mentioned to the President. The first was the manner in which these bills were passed. Without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the Kisans of this country who have built this country. So the way the bills were imposed, we see it as an insult to the Kisans of this country. The Kisan has lost faith in the government. The Kisan does not believe that the government is acting in their interest, and that is why lakhs of them are on the streets. And non-violently, compassionately on the streets, they are struggling in cold weather with complete respect. So we informed the President that it is absolutely critical that these bills are taken back. हिंदी में बता देता हूँ, देखिए जो किसान है उसने इस देश की नींव रखी है और वो दिन भर इस देश के लिए काम करता है। ये जो बिल पास किए गए हैं ये किसान विरोधी बिल है। प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि ये बिल किसानों के हित के लिए है। सवाल उठता है कि अगर ये बिल किसानों के हित में है तो किसान सड़कों पे क्यों खड़ा है? किसान इतना गुस्सा क्यों है? क्योंकि इन बिलों का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी के मित्रों को हिंदुस्तान का जो एग्रीकल्चरल सिस्टम है वो पकड़ाने का है और किसान इस बात को बहुत अच्छी तरह समझ गया है। किसान की शक्ति के सामने कोई नहीं खड़ा हो सकता और सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। सरकार को ये नहीं सोचना चाहिए कि किसान हट जाएंगे, डर जाएंगे। किसान, हिंदुस्तान का किसान डरेगा नहीं, हटेगा नहीं जब तक ये बिल रद्द नहीं कर दिए। धन्यवाद। Friends, we met the President. We asked him, being the custodian of the Constitution, being the highest authority in our country, to intervene and advise the government to repeal all these three agricultural laws. We told him these agricultural laws, three laws, will place the farmers and agricultural workers at the mercy of corporate and big agri-business giants. This should not happen. It will not be in the interest of the country as a whole. And it is not affecting only farmers who are agitating for the past 2 weeks. It will subject the agricultural workers to horrific conditions, living conditions. And this should not happen in this country. As political parties, we told the President
We have come here, we cannot remain mute spectators when farmers are on the streets fighting for justice. And as political parties, we cannot remain just onlookers. That's why we went there to articulate the concerns that farmers are having and the challenges that country is facing today because of these anti-democratic, anti-farmer laws which need to be repealed. This is what we told the Christians. Sir, 2 years back, this government promised in the parliament during a budget session that they will implement MS Swaminathan Commission recommendations in toto. But this bill has removed that promise. This bill has negatived that promise. This is the first mistake. Half of the farmers, more than 50% of the farmers are small farmers. They sell their products as a distress sale. Farmers should not be left like that. More, if this bill continues, we can see more suicides among farmers. This government is leading farmers for suicide. It is not a joke. It is the life of the farmers where the government should protect them. After promising in the parliament that the government will follow MS Swaminathan Commission committee reports in toto, now this bill has effectively withdrawn that promise. So it is going to leave our farmers in distress. It is going to kill them. It is going to lead for more and more suicides. This government should immediately consider the welfare. If the government has interest in the welfare of the farmers, this bill should be immediately withdrawn. We don't mind having a reformed agricultural bill. We are not against agricultural reforms. But this bill is not a reform bill. It is a bill against the farmers. The government said agriculture should be happy, but agriculturists are the streets. They are not happy. So the government should immediately see to it that this bill is withdrawn. That is what we had our prayer to the President of India, who is the head of the state, who has signed this bill. We had asked him to call the government and tell them, advise them to reconsider this bill in the parliament. That is our prayer. Sir, you have said, Thank you. You have said 20 parties in this memorandum. More than 20. More than 20, but not 20 on only 5 a year. They only allow. They only 5. No, but you have had ministries of all 5. You see, we gave the President this. We have explained and we continue to explain. राष्ट्रपति भवन का ये नियम है, कोविड प्रोटोकॉल की वजह से 5 से ज़्यादा लोगों की डेलीगेशन अलाउ नहीं करते। तो इसलिए हमने और सुनिए, एक मिनट सुनिए, और एक किसानों के प्रस्ताव को किसानों ने खारिज कर दिया और उन्होंने कहा है कि अपने आंदोलन को तेज करें। पता है। अब आप लोगों की भूमिका क्या होगी? नहीं, हमारी भूमिका यही है भैया। बड़े देखिए, सरकार को गलतफहमी में नहीं होना चाहिए। किसान कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि उनको समझ आ रही है बात कि अगर वो आज कॉम्प्रोमाइज कर गए तो उनका हिंदुस्तान में कोई भविष्य नहीं रहेगा। उनको बहुत क्लियरली ये बात समझ आ गई है कि अगर वो आज नहीं खड़े हुए, और मैं किसानों से कह रहा हूं, अगर आप आज नहीं खड़े हुए तो फिर आप कभी नहीं खड़े हो पाओगे। और हम सब आपके साथ हैं, आप बिल्कुल घबराइए मत, हम सब आपके साथ खड़े हैं। आपको कोई पीछे नहीं हिला सकता। आप हिंदुस्तान हो। थैंक यू। ओके।
For more updates, do like, share and subscribe News World and give